See, in previous method, we have understood about method of joints, and now we will study about the method of section. Now, where as an engineer, where should we use method of joint and where should we use method of section? See, it is quite some of the engineers may like to solve it through joints. Some of engineers may like to solve it through method of section process. But mostly, what happens when the structure is quite small? Mean this is a structure, say kind of this. This is a structure, okay? So the number of members are not that much huge. So we have only 1, 2, 3, 4, 5 joints. So we can adopt the method of joint in these kind of for this kind of example. जहाँ पे मतलब हमारा structure उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, पर मेथड ऑफ सेक्शन हम हमारा वो कब यूज करते हैं इंजीनियर्स, जबकि स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है. जस्ट से इन दिस वे, इसे इतना सारा मेंबर्स है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, isn't it? So there are so many members force you have to solve or you have to calculate, or see there are so many numbers, numerous joint. तो एक एक जॉइंट को पकड़ के सॉल्व करते रहोगे तो मतलब बहुत टाइम निकल जाएगा. तो फॉर दिस काइंड ऑफ सिनेरियो मेथड ऑफ सेक्शन इज मोस्ट प्रेफरेबल वन. से अगर if someone asks you that please can you please tell me the force member of this one and this one, अब ये दोनों मेंबर का फोर्स मेंबर तुमको निकालने के लिए यहाँ से शुरू करना पड़ेगा. ये जॉइंट सॉल्व करो, फिर ये मतलब एक एक जॉइंट सॉल्व करके करते करते तुमको ये मेंबर मिलेगा. तो मेथड ऑफ सेक्शन हम एक ही बार में ये मेंबर और ये मेंबर को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. तो एक एग्जांपल आज सॉल्व करें, ठीक है? ओके, so this is a section. See, this is a truss member. This is a truss member of a bridge as a bridge structure. Okay, ये bridge ऐसा होता है ना, मतलब ये एक से फुट ब्रिज जहां पे at B point 3 kilonewton force has been provided, and at F point 4 kilonewton force has been provided. Now we have to calculate, say if I say that please can anyone tell me the member force of BB, BE and CE. हमें ये तीनों मेंबर का फोर्स निकालना है from these dimension or these values given in the problem. अब कैसे निकालोगे? तो इसको हम मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करेंगे. सी, हम सेक्शन एक स्ट्रक्चर को ऐसे कट करेंगे ताकि हमारा जो 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो सेटिस्फाई रहे. तो जस्ट बिकॉज वी वर आस्क्ड टू get the value of BD, BE, CE, so we can easily cut from this part. Okay, so after cutting this part, we can solve from this. So अब क्या, ये कट हो जाने के बाद ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से अलग हो जाता है और यहाँ से अलग हो जाता है. ओके, तो अब हम स्ट्रक्चर को यहाँ से भी सॉल्व करके तुमको प्रूव करेंगे कि ये यहाँ से सॉल्व करो, जो तब भी जो रहता है यहाँ से भी मैं सॉल्व करके प्रूव करूंगी कि यहाँ में से भी वैल्यू हमारा सेम निकलेगा. ओके, सो नाउ अब ज्यादातर हमको इस स्ट्रक्चर में जितना अननोन फोर्सेस है उसको सॉल्व करना पड़ेगा. नाउ सी हियर द रोलर सपोर्टेड रेजिस्टेंस कौन डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन? रोलर सपोर्ट कैन ओनली exert a reaction force in a vertical direction,
and for hinge support the resistance will be for vertical and horizontal. So now these are unknown and we can evaluate that because the corresponding forces are given here. The corresponding external forces, देखो स्ट्रक्चर में हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहा है तो रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन को भी तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एक्शन उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ना ताकि ये स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रिएट रख सके. तो लेट्स जस्ट सॉल्व इट. তোমরা আমার সাথে সাথে করবে বলবে মানে আমি একা করে গেলে তো হবে না. So in each direction in horizontal direction how many force, if I can say that summation, I am now just solving the summation of all the horizontal force in one direction. So there is, let me just say that there will be three equation. One will be summation of all the horizontal forces equal to 0. Another one will be summation of all the vertical forces equal to 0. And summation of all the moment will be equal to 0. These are the three equations which we have to satisfy, and from these three equations we can resolve our reaction forces as well. So now see horizontal, in horizontal side में कौन से force तुमको दिखाई दे रहा है? कोई भी मुझे ये बताओ. इस structure में से Orindam this is HX, this is HY, this is AY. See, please just এই প্রসেসটাকে ভালো করে বুঝে নাও because after that you will be getting a more larger structure than this. So if you will not understand the concept of this structure then you will not be able to solve that either. Okay. So now see, there are only two horizontal force which is observed in this structure. One is 3 kilonewton, another is that Hx mean at the point H, the X directional force. These are the two only known force what we can observe right now. So now that equation for all the horizontal forces will be our Hx. So this is in this direction, this is in a positive, so it is positive, and this 3 kilonewton is also in the similar direction, so this will be also in a positive. So Hx plus 3. Is there any other horizontal forces you can observe in the system? Anyone? I cannot see. These are only two forces I can see in the whole structure. So these two horizontal forces are main reason which can disbalance or inequilibrate this structure. Now our main motto is to equilibrate that forces. Okay, so this will be equal to 0. हमको ये दो ही मतलब डिस्टर्ब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिला जो कि स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो हमको इन दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल इक्विलिब्रेट रहे. तो Hx अगर Hx plus 3 equal to 0, so what will be our Hx right now? It will be Hx equal to -3. If we can take this 3 in this place, this will be Hx3. मतलब कि Hx को -3 होना पड़ेगा, मतलब इसका उल्टा वाला फोर्स होना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर को इक्विलिब्रिएट रखने के लिए. Okay. So now let's just solve our vertical direction forces. So here, what are the vertical direction forces we can observe? Can anyone say? Abir there? Very good, very good. तो अब क्या इस फोर्सेस का डायरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम साइन को लिख सकते हैं. सो AY is going upward, so it will be positive. HY is also going upward, it will be also positive. But here 4 is coming downward, so it will be negative. So there is no other such vertical forces in the system, so this will be equal to 0. Okay, so this is one equation we have established. Now for the moment. So if we can take a moment
अबाउट पॉइंट ए। ओके, मतलब कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम सब मूवमेंट को लेंगे, माने इस पॉइंट को फिक्स रखते हुए जो भी फोर्सेस यहाँ पे है, मतलब हमको तो मूवमेंट का पता है, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू द डिस्टेंस। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो जो भी यहाँ पे फोर्स आ रहा है, उन सब फोर्स का इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग मूवमेंट निकालेंगे। ओके, सो नाउ सी हियर, so what we can say here, see, let's start from this। okay, एकदम फार एंड से लेके इसका मूवमेंट लेना कैलकुलेट करते हैं। तो एच वाई, सी दिस एच वाई फोर्स, how much of distance this hy have to cover to come at a point? How much of distance? 5 plus 5 10 plus 5 15 plus 5 20। just a minute, just a minute। मतलब के ये एच वाई फोर्स को इस ए पॉइंट में पहुंचने के लिए हमको 20 मीटर लेंथ को कवर करना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स ये ए पॉइंट में आने के लिए ऐसा एक मोमेंट का जर्नी तैयार करना पड़ेगा। तो ऐसा एक मोमेंट का जर्नी तैयार करने के लिए कितना सारा लेंथ को कवर करना पड़ेगा? 20 मीटर। सो दैट विल बी आवर let's just write it down in different way, hy into 20 मीटर। ओके, सो नाउ अब देखो, ये जो फोर्स इस पॉइंट पे आने के लिए जो मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये जो मोमेंट ऐसे आएगा इस पॉइंट पे, तो ये कैसा डायरेक्शन है? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एग्जैक्टली, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ये होगा हमारा नेगेटिव एच वाई, ये होगा हमारा नेगेटिव एच वाई इंटू 20 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट फोर्स देखते हैं हम 4 किलो न्यूटन का। ये देखो, ये एच एक्स नहीं होगा, एच एक्स का मोमेंट अबाउट ए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब पूछो मुझे। क्योंकि देखो, ये मूवमेंट ये क्रिएट यहां तक ही कर पाएगा। तो यहां से घूम के, मतलब पहले वर्टिकली घूमना पड़ेगा, फिर हॉरिजॉन्टल घूमना पड़ेगा। ऐसे तो कोई फोर्स का मूवमेंट नहीं निकालते हैं। मोमेंट क्या, एक वर्टिकल फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। हम तो ऐसे ये लेंथ घुमा के तो ऐसे नहीं मूवमेंट निकाल सकते, ऐसे तो मूवमेंट नहीं निकलता है। दैट इज व्हाई दिस एच एक्स मूवमेंट अबाउट ए विल बी नलिफाइड। ओके, सो द नेक्स्ट फोर्स विल बी 4 किलो न्यूटन। अब देखो, ये 4 किलो न्यूटन, minus hy, just a minute, minus hy into 20। अब ये देखो, ये जो फोर्स आ रहा है 4 किलो न्यूटन, ये इस पॉइंट पे जाने के लिए कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा इसको, ये फोर्स, और इस पॉइंट में आने के लिए, ये पॉइंट में आने के लिए, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है ये इस फोर्स में से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही है। तो ये कितना लेंथ इसको कवर करना पड़ेगा टू क्रिएट अ मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट? हाउ मच ऑफ लेंथ? एनीवन? सो सी दैट फोर्स, इस फोर्स को इस ए पॉइंट पे आने के लिए कितना लेंथ कवर करना पड़ेगा? इसका देखो, ये तो वर्टिकल फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 5 प्लस 5 प्लस 5, मतलब टोटल 15 लेंथ। मतलब कि ये 4 किलो न्यूटन को टोटल 4 15
मीटर लेंथ का जर्नी करना पड़ेगा टू क्रिएट दैट मोमेंट। तो अब देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूमने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एनीवन? दिस इज रोटेटिंग इन दिस वे। Clockwise. Exactly, clockwise. So this will be positive. This will be positive. Okay. Now next force is C, 3 kilonewton. तो 3 किलोन्यूटन को इस ए पॉइंट में आने के लिए कैसा मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा? देखो ये जो मोमेंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इस फोर्स के एकदम परपेंडिकुलरली लाई कर रहा है ना, मतलब ऐसे लाई कर रहा है ये फोर्स, और ये हमारा डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? देखो ये 5 मीटर दिया गया है, तो ये जो मोमेंट क्रिएट करेगा that will be like this. So it will be 3 into 5. So this is also clockwise. So there will be our positive 3 into 5 equal to 0. अब मुझे कोई ये सॉल्व करके बता सकते हो 8y का वैल्यू क्या होगा? Anyone please, can anyone calculate this for me? It will be our 3.75 kilonewton. अब देखो हमको HY मिल गया। अब हमारा देखो इस HY में अगर वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो AY आ जाएगा। AY का वैल्यू बता दो जल्दी से। AY will be 4 minus 3.75 obviously. It will be 0.25. Sorry. ये HY के जगह पे अगर 3.75 यहाँ पे दे दे तो AY का वैल्यू होगा 0.25। ओके, तो हमारा ये वर्टिकल जो फोर्सेस है ये पूरा निकल गया, इजंट इट? तो हमारा जो HX वो तो -3, मतलब कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसे हमको HX मिलेगा। इसको अलग से यहाँ पे दिखाते हैं। HX जो हमारा ऐसे होगा, क्योंकि ये नेगेटिव आया है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और हमारा HY का वैल्यू मिल गया जो कि है 3.75 एंड AY का वैल्यू है 0.25। ओके, सो नाउ दीज आर टू वैल्यूज। अब क्या हमारा पूरा स्ट्रक्चर का जो अननोन फोर्स है यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस फ्रॉम द सपोर्ट, ये हमारा रिजॉल्व हो गया। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट आवर मेंबर फोर्सेस which are given in the question. So अब इसको ये BD, BE, CE ये तीनों मेंबर को हमको पूछा गया है, राइट? सो हम इसको ऐसे कट करेंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इस डायरेक्शन में सॉल्व करना दिखाता हूँ, ठीक है? तो एक काम, हमने इसको कट कर दिया था, तो बस अब ये वाला साइड देखो। ओके, ओनली जस्ट लुक एट दिस पार्ट एंड फॉरगेट दिस पार्ट, जस्ट कैंसल दिस पार्ट। ओके, डू नॉट लुक एट दिस पार्ट। तो ये जो हमारा यहाँ पे मेंबर्स है वो ये BD का कट पोर्शन एक्सपोज्ड है, BE का कट पोर्शन एक्सपोज्ड है, CE का कट पोर्शन एक्सपोज्ड है, ठीक है? तो अब ये वाला पोर्शन को लेके हम लोग इस मेंबर फोर्स को निकालेंगे। देखो ये बहुत ही इजी है, मेथड ऑफ जॉइंट से भी बहुत ही इजी है ये। अगर एक बार सीख लोगे तो मेथड ऑफ सेक्शन से ही बार बार करने को मन करेगा। तो अब देखो ये पहले लेट अस जस्ट कैलकुलेट फर्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, वो है कि पहले से हम BD मेंबर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? BD मेंबर को कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये आधा वाला जो पोर्शन है। तो देखो ये अगर मैं ऐसे साइड करके ड्रॉ करूं, ये कट पार्ट हमारा ऐसे दिखता है,
यहाँ पे हमारा जो ए पॉइंट, इस ए पॉइंट का जो रिएक्शन फोर्स ये हमको 0.25 मिल गया, 0.25। और यहाँ पे हमारा एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो कि 3 किलो न्यूटन, 3, and this is our BD, this is our BE, this is our CE। ओके, नाउ अब देखो इसके एंगल कैसे निकालेंगे। एंगल निकालना तो बहुत ही आसान है। देखो इसका हॉरिजॉन्टल भी सेम है, वर्टिकल डिस्टेंस भी सेम है, 5 और 5, मतलब कि ये tan इनवर्स हमारा जो ये 1 रहेगा, मतलब कि ये 45 डिग्री रहेगा ऑलमोस्ट, तो ये 45 डिग्री रहेगा। ओके, अब देखो हम जब BD ये मेंबर को कैलकुलेट करेंगे तब देख हमको इस मेंबर का मोमेंट निकालना है। तो ये तो एक वर्टिकल फोर्स ऐसा है, तो मोमेंट निकालने के लिए हमको इसका परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस चाहिए, है ना, मतलब ऐसा एक डिस्टेंस चाहिए, ऐसा एक मोमेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये मोमेंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट E है, पॉइंट E, देखो ये वाला पॉइंट, ये तो आधा अधूरा यहाँ पे तो कट कर दिया ना, तो ये पॉइंट E सपोज यहाँ पे रहेगा, तो ये मोमेंट एट E पॉइंट में कैसे घूम के आएगा ये हम देखेंगे। तो हम मोमेंट अबाउट E को कंसीडर करेंगे while calculating the BD because we will get a perpendicular distance। और देखो और एक सुविधा क्या है कि BE जो ये इंक्लाइन मेंबर है, इस इंक्लाइन मेंबर का तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई मूवमेंट ही नहीं क्रिएट होगा क्योंकि ये इंक्लाइन मेंबर है। इंक्लाइन मेंबर का तो इसके जो एकदम कोइंसाइड कर रहा है, ये पॉइंट पे जो कोइंसाइड कर रहा है, इसके इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो कोई मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। और देखो ये सीई मेंबर, ये सीई मेंबर भी ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे करके और ये ऐसे डिस्टेंस में जाके तो मोमेंट क्रिएट नहीं होता है। मोमेंट तो ऐसे क्रिएट होता है अगर ऐसे फोर्स आए या ऐसा डिस्टेंस रहे, है ना। तो हमारा क्या हो रहा है कि बीई और सीई का मोमेंट यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, बस बीडी का ही मिल जाएगा हमें। तो फिर क्या होगा, तो हमको सिर्फ अननोन बीडी ही मिलेगा, ये और 2-3 इक्वेशन फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसका तो मोमेंट वैलिड ही नहीं है। तो हमको एक इक्वेशन जहां पे जो 3 अननोन है ऐसा कुछ रहेगा नहीं इक्वेशन। तो देखते हैं ये कैसे बनेगा। सो वी आर कंसीडरिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट E, मतलब ये मोमेंट कंसीडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता चल जाएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सब मोमेंट ले लो, सॉल्व हो जाएगा। देखो अब क्या ये BD हमारा E पॉइंट तक कितना मोमेंट क्रिएट करेगा, BD into 5 meter, this distance is 5 meter, right? So BD will create a BD into 5, BD into 5 meter, okay? अब देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अगर ऐसा मोमेंट क्रिएट करेगा तो ये कैसा, मतलब कौन से डायरेक्शन में मोमेंट आ रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये मोमेंट कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेगा, BD into 5, ओके। नाउ सी अब क्या है नेक्स्ट, ये सिस्टम में बाहर का जो फोर्स है ये 3 है। अब ये 3 का भी इस पॉइंट के साथ डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर वे में, ये 5 मीटर का दूरी है इस पॉइंट में। देखो तुम ऐसे मत देखो, डोंट लुक एट दिस वे, ट्राई टू लुक ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स। तो ये फोर्स का मोमेंट जो है पॉइंट ई में आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कवर करके मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसका भी 5 मीटर ही गुजरना पड़ेगा मोमेंट क्रिएट करने के लिए, और ये भी क्लॉकवाइज ही हो रहा है। सो दैट विल बी +3 into 5, okay? So now see the next force is coming is 0.25,
तो आप 0.25 देखो, 0.25 से ई का डिस्टेंस परपेंडिकुलर है तो इजीली हमको इसका मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये 0.25 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये देखो यहां से ये ई का डिस्टेंस कितना है 5 + 5, और ये कैसे, मतलब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ई पे आने के लिए कैसा मूवमेंट क्रिएट होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? This will again be clockwise, so it will be 0.25 into 5 + 5 मीटर इक्वल टू 0। बस ये हमारा इक्वेशन है। ये सिस्टम में जो हमारा फोर्सेस है और जो फोर्स को हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, और बाकी दोनों का तो मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो पैरेलल ही है इस डिस्टेंस से, ये मेंबर का फोर्स, और ये इंक्लाइंड है तो ये तो मेंबर मतलब के सॉरी ये एक्चुअली इस पॉइंट पे जाके मिलता है ना, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका कोई मोमेंट क्रिएट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करके हमें कोई थोड़ा बता सकते हो ये वाला? तो बीडी हाँ हाँ 3.5. 3.5. So everything is in positive in this side. Coming after in this equation, it will be No, minus 3.5. Ma'am, 2 points. আমারও কিন্তু 3.5 ই এসেছে। তুমি আরেকবার একটু চেক করবে রাকা? Okay, ma'am. So 2.5. This is 0.25 into 10 will be 2.5. 2.5 plus 15 will be 17.5. 17.5 divided by 5 will be 3.5. So this all will come in this side, so it will be negative. So BD का वैल्यू जो है हमको मिल गया। अब क्या, now let just, अब ये तो एक मोमेंट, तीनों हमको क्या पता था, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमको सारा जो वैल्यू है मेंबर का वो मिल जाएगा। एक है समेशन टू द हॉरिजॉन्टल, ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ द मोमेंट एट अ पॉइंट इक्वल टू 0। तो मोमेंट तो हमने यहाँ पे निकाल दी, अब क्या समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से निकालते हैं पहले। ओके, सो देखो इस सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या क्या है, ये एक 3 किलो न्यूटन है, और क्या है यहाँ पे हमारा जो है BD है, ये BD, ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और यहाँ पे एक है हमारा BE का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये CE है। तो 1 2 3 4 हमारा 4 कंपोनेंट्स है जो कि यहाँ पे हमारा रहेगा। तो अच्छा एक काम करते हैं पहले ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारा अननोन्स रह जाएगा, तो मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि वर्टिकल समेशन ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन का वो पहले सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल में इनिशियली ज्यादा अननोन रह जाएगा, तो मैं वर्टिकली देखती हूँ। तो तुम लोग हॉरिजॉन्टल भी पहले सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अननोन रह जाएगा, उसके बाद वर्टिकल जब हम करेंगे तो उससे जो वैल्यू निकलेगा वो उसको यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे वर्टिकल पहले करती हूँ। तो वर्टिकल अगर करूंगी तो देखो वर्टिकल में बस ये दोनों फोर्स जो कि है ये 0.25 और ये BE का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये दोनों मेंबर मिल रहा है, जो कि हमको ये वाला पता है तो ये वाला वैल्यू तो इजीली मिल जाएगा, इसलिए मैं वर्टिकल को पहले अप्रोच की। तो हमारा समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस में क्या होगा, ये अपवर्ड है तो ये होगा 0.25, और ये वाला मेंबर का जो ये डाउनवर्ड है तो ये होगा माइनस में, तो माइनस क्या होगा, माइनस हमारा BE, और ये हमारा 45 डिग्री है तो ये हम cos 40 भी ले सकते हैं, sin 40 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से भी तो 45 ही है ना तो ये हम sin 45 ही लेते हैं, sin 45 इक्वल टू 0। तो हमारा BE का जो वैल्यू होगा, BE will be our 0.35। अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगा कि नहीं थोड़ा चेक कर लो, ठीक है। तो हमारा
यहाँ पे देखो BD मिल गया, BE मिल गया, बस CE ही निकालना बाकी है। तो CE हम अब all the summation of the horizontal forces equal to 0 करके हम देखते हैं। तो वो जो पहले वाला बताई थी इस सिस्टम में, यहाँ पे horizontal forces क्या क्या है, ये है, पहले देखो, ये पहले मेंबर्स का यहाँ पे बैठा देते हैं। तो BD सब इसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव ही है। तो PD प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस BE cos 45 प्लस हमारा ये CE जो है CE प्लस ये 3 किलो न्यूटन इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस समेशन इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो BD का वैल्यू मिल गया, BD का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, BE का वैल्यू मिल गया, BE का भी यहाँ पे पुट कर देंगे, तो CE मिल जाएगा हमको, isn't it? So CE will be our, can anyone tell me what will be CE? আমার যেটা ভ্যালু আসছে 0.25। Okay, so the values of these three member are now solved হয়ে গেল। Just 1 2 3 4 5 6 in just 6 line we have calculated our 3 member forces, isn't it easy? So first solve the reaction forces, then cut its corresponding diagram, I mean the members which you are required to know, then just cut that section and just find out the moment. That finding the point of moment is very important। अगर moment point तुम decide कर लिए कि इस point पे अगर moment लेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा member force निकल जाएगा, तो वो moment के direction में सब हमको मिल जाएगा। तो हमारा BD जो है ये compression में रहेगा -3.5 kilonewton, this will be in compression, this BE is 0.35, that will be in tension positive, and CE will be in tension 0.25। Okay, so in next day I will solve the how to solve in this way। अब next day में हम इस साइड से solve करेंगे, इस साइड से solve करेंगे, तो इस साइड से solve करके भी देखेंगे मैजिक होता है कि नहीं। मैजिक मतलब कि इस साइड में जो वैल्यू आ रहा है इस साइड में भी तो वैल्यू वही आना चाहिए, तभी तो हमको मजा आएगा कि ये अरे ये सेक्शन तो ये मेथड तो बहुत ही मतलब इफेक्टिव है, जिसी भी तरीके से निकालो इसका वैल्यू आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट डे हम इस साइड से इसको सॉल्व करेंगे। अगर तुम कोशिश करना चाहो घर में तो वो तो बहुत ही अच्छा है, तो नेक्स्ट डे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो इज देयर एनी प्रॉब्लम अप टू दिस?